Hello everyone, my name is Shapnanil Shaha. I have recently cleared my SBI Junior Associate as well as my SBI probationary exams in the very first attempt. I have been receiving several texts on my social media handle asking about my preparation. So I have created this channel to help aspirants clear the exam in a very short span of time and in the most efficient way. Through this channel, I will share my journey, my strategies, the resources that I used, and every other minute detail that are required to crack this exam, like how to give mocks, how to analyze the mocks, how to develop the correct mindset to crack this exam. However, in this particular video, I will primarily focus on the resources that I used. Just a small disclaimer that none of the resources that I am going to say, whether paid or free, are a paid promotion. These are the genuine resources that I used for my preparation. Before diving into the topic, I would want to show you my scorecards of my SBI JA and SBI PO mains exams. In my SBI Junior Associates exam, I have scored 86.5. I had applied from the state of West Bengal. In my SBI PO exam, I have scored 104.38 in the mains exam. I have scored 29 out of 30 in my personal interview, and I have scored 16 on 20 in my group discussion and group exercise, which comes down to a composite total of 53.81 out of 100 as my final score of the SBI PO exam. As we all know कि banking exams में 4 main subjects होते हैं. Number 1 is quant, number 2 is reasoning, number 3 is English and number 4 is GS. I would want to start with GS. तो मैंने अपने कॉलेज के डेज के दौरान थोड़ा बहुत यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था, तो उसके वजह से मेरा जो इकोनॉमिक्स का बेस है और जो भी और सब्जेक्ट्स है उनका जो बेस है वो मेरा थोड़ा बहुत क्लियर था. तो आई हैड जस्ट हैड टू ब्रश अप द स्टैटिक पोर्शन एंड हैड टू फोकस ऑन द करंट अफेयर्स. कि बैंकिंग एग्जाम्स आज के दिन हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया है, लेकिन आपको अपना स्टैटिक भी क्लियर रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब तक नहीं रोकोगे, हम लोग एवरी ईयर देखते हैं कि 1-2 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आ जाते हैं, तो दीज कम फ्रॉम योर स्टैटिक पोर्शन. अंटिल एंड अनलेस यू क्लियर योर स्टैटिक पोर्शन, you will have to read about Asian Development Bank, United Nations, your IMF, World Bank. So these will become very confusing for you. So you have to clear your basics first. Then you have to read your newspapers. I have been reading newspapers since my class 5-6. Then I used to read TTIS, that is the Telegraph in school. From my class 9-10, I used to read the Times of India. In my college, I used to read the Hindu, and now I am reading the Indian Express. I'm not telling that you have to read the newspaper every topic in detail, but at least the headlines and the editorial in detail. क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे तो आप देखोगे कि न्यूज़ रिपीट होता रहता है. अगर इस वीक यूनाइटेड नेशंस को लेकर कोई न्यूज़ है तो वो सेम चीज़ आपको एक वीक बाद भी मिल जाएगा. तो दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट. जीएस के लिए मैंने यूट्यूब में कपिल मिश्रा सर अभिजीत मिश्रा सर और कपिल कटपाल सर का वीडियोस देखता था कभी कभी, एंड दे यूज्ड टू हेल्प मी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड अ पेड कोर्स, द पीडीएफ कोर्स ऑफ रिकी रॉय सर, जिनको आप लोग आरबीआई वॉरियर के नाम से जानते होंगे. तो वो ही यूज्ड टू ऑलवेज सेंड डेली करंट अफेयर का जो बुलेटिन्स होता है, and I used to use that for revision. But your primary source for GS should always ideally be the newspapers. So that brings me to my next point, that is English. English का भी मेजर जो सोर्स होता है वो न्यूज़पेपर ही होता है. आई हैड माई बेसिक्स ऑफ द ग्रामर क्लियर, और वो आपको थोड़ा बहुत पहले तो क्लियर होना चाहिए, जिनके लिए बहुत सारे ब्रिलियंट टीचर्स है यूट्यूब पे, लाइक यू हैव हर्षिता मैम, दे आर टीचिंग यू इन ग्रेट डिटेल योर ग्रामर. बट हम लोग एग्जाम्स में देखते हैं कि ग्रामर का वेटेज अभी कम है. द मेन वेटेज इज ऑफ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. SBI PO का मेन्स एग्जाम में ऑल्सो वी सॉ दैट टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग को देखने को मिला. तो योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैव टू बी टॉप नॉच. Also, the descriptive paper that you have to write in your SBI PO exam, that also is a part of the English subject only, na? So you have to have the reading comprehension skill at the top notch level. आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल्स रोज पढ़ें, वहाँ से आपको आपका आइडियाज़ इवॉल्व होंगे, आपको नया वोकेबुलरी मिलेगा. In the beginning, those might seem very difficult. You will find many jargons in the paper. आप एक डिक्शनरी रख लीजिए, थोड़ा दिन डिफिकल्टी होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका वो हैबिट डेवलप होता रहेगा. और once that habit is developed, you will never leave reading newspaper. Reading newspaper will never become boring again. Also, don't focus all your time in the newspaper or all your time in the GS. You can maximum give a total of around 1 to 2 hours for GS and around the same time for English, क्योंकि
the next subjects that are maths or reasoning, they are your foundation subject, they are your make or break subject, and I also had to do a lot of hard work for these subjects. So next I would come to the quant section. Next is your quants and reasoning sections. These sections are the toughest sections of the banking exams, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है. मैंने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इन सेक्शंस में दिया है. तो मैं एक साल पहले आपको ले चलता हूँ, जब मैं अपना कॉलेज ख़त्म किया. आई हैड स्टडीड हिस्ट्री, माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वॉज हिस्ट्री, सो आई वॉज अ बिट आउट ऑफ टच ऑफ मैथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर द 2-3 years. I was studying maths. This is one thing that I would want to point out, that every day I used to do 5 to 10 sums, but those were not very effective कि फॉर दीज एग्जाम्स, क्योंकि दीज एग्जाम्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है. लेकिन आई हैड दैट प्रैक्टिस टू स्टडी एवरी डे. तो जब मैं कॉलेज के बाद अपना CHSL एग्जाम पहले देने गया, तो आई बिकेम ब्लैंक. देयर वर टू मेनी एडवांस मैथ्स, द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एवरी अदर सम. आई वॉज फीलिंग कि मेरा कैलकुलेशन नहीं बन रहा है, मेरा स्पीड नहीं हो रहा है, वो क्लॉक का टिक 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 एक सेकंड कम हो रहा था, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो मेरा ऑफकोर्स वो एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाया CHSL. सो नेक्स्ट मेरा SSC CGL का प्रीलिम्स था. उसके पहले मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे. आई यूज्ड टू गिव मोस्ट ऑफ द टाइम इनटू द CGL प्रिपरेशन. तो तब जाके मेरा CGL का प्रीलिम्स निकल गया, एंड माई मेन्स वॉज इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो मैंने मेन्स के पहले ये गलती कर दिया था कि I was giving a lot of mocks. I had learned the advanced concepts of like probability, mensuration. I had learned everything, but I was always giving mocks. Every day I was giving 2 to 3 mocks, but somehow something जो मैंने मिस कर दिया था वो ये था कि मेरा स्कोर एक ही रेंज में स्टक हो गया था. फिर भी मैं मॉक्स दिए जा रहा था उनको एनालाइज किए बिना, और वो टॉपिक्स जाके रिवाइज करने या उनको पॉलिश करके बिना ही मैं मॉक्स दिए जा रहा था. एंड आई गेव द एग्जाम, एंड मेरा कुछ मार्क्स से वो एग्जाम पे नहीं निकला. उसके बाद I started preparing for the banking exams, because if I have to be honest, before January 2025 I was not aware of the bank exams. आज भी मुझे शायद SBI IBPS के अलावा जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है. लेकिन उसके बाद जब मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, बैंकिंग एग्जाम्स में मैं आया, तो आई अंडरस्टूड कि ओके, द मॉक्स उनका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए. तो पॉइंट्स मेरा, जैसे मैंने कहा कि तब मेरा थोड़ा बहुत एडवांस मैथ्स हो गया, या जो भी टॉपिक्स है वो मैं क्लियर करके ही आ रहा था. एट दैट टाइम आई हैड स्टडीड ऑन यूट्यूब फ्रॉम गगन प्रताप सर, आई हैड स्टडीड फ्रॉम शुभन जैन सर, जिनका वो चैनल है RBE. तो मैं इन लोगों से पढ़ा था मैथ्स. उसके बाद मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करने का स्टार्ट कर दिया, एंड द फर्स्ट एग्जाम दैट आई गेव वाज SBI क्लर्क एग्जाम. तो वो एग्ज़ाम मेरा अच्छा हो गया था. आई वॉज श्योर कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा. आई हैड अराउंड आई थिंक 79 अटेम्प्ट्स इन दैट एग्ज़ाम, एंड आई स्कोर्ड 72 इन दैट एग्ज़ाम. तो जब मैं SBI क्लर्क का एग्ज़ाम देके घर आया था, उस दिन आई थॉट कि ओके, मेरा ये एग्ज़ाम तो हो गया, बट व्हेन आई वाज सीइंग द मेंस पेपर्स, आई वाज सीइंग कि ये शायद मेरा रीच के बाहर है. जो पजल्स है, इतना बड़ा पजल्स मैं पहले कभी नहीं देखा था. इतना डिफिकल्ट DI आई हैड नेवर सीन बिफोर. सो आई अंडरस्टूड कि ओके, आई नीड सम स्पेशलाइज्ड गाइडेंस. तो उस दिन मैं आके यूट्यूब में थोड़ा बहुत सर्च किया, तो मुझे यशराज सर का वीडियो मिल गया, वेटरन सर. तो मैंने उसी दिन वो SBI क्लर्क का मेंस मास्टरी बैच लॉन्च किए थे, एंड आई टुक दैट बैच, एंड देन आई religiously followed his classes, and his classes helped a lot. I was immensely helped by his classes. मेरा DI पे पकड़ आ गया था, मेरा puzzles पे पकड़ आ गया था, and after that his classes helped a lot. And I was also following Harshal sir's videos, Meenakshi ma'am's marathons. These videos also helped. हर्षल सर के जो critical reasoning के जो classes थे वो भी मुझे help किए थे. क्रिटिकल रीजनिंग इज समथिंग ऑल्सो दैट एस्पिरेंट्स ऑफन इग्नोर, लेकिन वो भी आपको करना होता है, क्योंकि एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आ जाते हैं, और कभी कभी क्वेश्चंस इजी साइड पे भी होता है. लेकिन हमारे दिमाग में एक बायस होता है कि क्रिटिकल रीजनिंग का आंसर करूंगा तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, तो मार्क्स जा सकता है, लेकिन आपको उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश एटलीस्ट करना चाहिए. सो दिस इज हाउ I prepared my maths and reasoning. I was giving, I had learned all the details from the teachers. Then I started giving the mocks, and mocks देने के साथ साथ I was again going back
क्लियरिंग माई बेसिक्स, अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था. जैसे आई अंडरस्टूड कि ओके मुझे बैक-एंड प्रॉब्लम, पजल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई वेंट बैक, studied how to solve back-end puzzles and again came back to the mocks and I understood now I am on the better side. और ऐसे ही मैंने अपना quants और reasoning भी strong बनाया and slowly SBI PO भी निकल गया and this is how it all went. These are all the resources that I used for my preparation. In the next video, I would want to share the strategy that helped me clear this exam. We all know कि IBPS exams are just around the corner and it is very important right now to make the right strategy and planning to clear the exam this year itself. In the next video, I will share my strategy, my daily routine, how I used to solve the mocks. But I would also like to point out over here that after hearing my strategy, you have to create your own strategy. Because if 505 people have cleared this exam, they have cleared this exam in 505 different ways. सबका कंडीशन, सबका प्रिपरेशन का लेवल अलग होता है, सबका लर्निंग का स्पीड अलग होता है, तो वो आपको अपने हिसाब से ठीक करना होगा. वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग द वीडियो, आपको कभी ये सोच के डीमोटिवेट नहीं होना है कि शायद आपका बैकग्राउंड साइंस से नहीं है या आप कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हैं या फिर आपका स्कूल और कॉलेज में मार्क्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं देखता है कि आप पहले क्या कर चुके हैं. गवर्नमेंट सिर्फ यही देखता है कि आपका अभी का लेवल कौन सा है. आई माई सेल्फ हैव स्टडीड हिस्ट्री. मैं हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करके भी इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में फिर से अपना मैथ्स और रीजनिंग का बेस बना के एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ. तो आपको यही सिर्फ करना है कि आपको हार्ड वर्क करना है विद अ बिट ऑफ स्मार्टनेस ऑफ कोर्स, कि आपका डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, दिस इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू अचीव एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड यू कैन easily sail through these exams with a lot of hard work and smart work. As I often say that hard work often beats talent when talent doesn't work hard. Thank you for watching the video. आपको अगर कुछ और डाउट्स है या आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक्स को लेकर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई हैव ऑल्सो लिंक्ड माई टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ जाके भी मुझसे जुड़ सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.